إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رحمن أغثنا يا رحمن أغثنا يا رحمن أغثنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم والضحى صبح کی قسم ہے
واللیل اذا سجا، رات کی قسم ہے جب اس کی تاریکی چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے اور کل قیامت کو بھی سب سے اعلیٰ مقام اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو وہ نعمتیں، رتبے، شانیں، فضیلتیں عطا فرمائیں گے جس سے میرے محبوب پیغمبر آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ جب دنیا میں آئے تو یتیم آئے، اللہ نے آپ کو دنیا آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کا وہ تاج پہنا دیا کہ ایسی نبوت و رسالت کا تاج اللہ نے نہ پہلے کسی کو پہنایا ہے، نہ اس کے بعد قیامت تک اللہ کسی کو نبی اور رسول بنائے۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات۔ حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سعادت اور ان کا بچپن معاشرتی ہماری زندگی میں جو مسائل آتے ہیں اس اسلوب سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی تربیت، آپ کی زبان، آپ کا اخلاق، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ جس طرح ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ ذات لا شریک ہے، کہ اللہ کی وحدانیت میں، اس کی ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں اور نہ اس کے برابر کسی کی کوئی مثال ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، رتبہ، فضیلت بھی کوئی شریک نہیں اور کوئی مثال نہیں۔ آپ کی عمر 6 سال عمر ہے، بعض سیرت کی کتابوں میں 5 سال بھی آئی۔ آپ کی والدہ محترمہ جناب حضرت آمینہ جب بھی بیٹے کو دیکھتی تو اپنے مرحوم خاوند کی محبت جھلک مارتی کہ کاش میرا خاوند جناب عبداللہ زندہ ہوتے، اپنے اس خوبصورت بیٹے کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتے۔ اللہ، انہوں نے پروگرام بنایا اپنے سسر کے ساتھ تاریخ کے اندر اور ہمارے دین کے اندر
ساس اور جو سسر ہے وہ محرم رشتہ دار ہے۔ عام طور پہ ہمارے بعض گھروں میں ہماری بیٹیاں جن کو بہو کہتے ہیں اپنے سسر سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ یہ شریعت میں اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جب کسی نوجوان سے نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، جو اس کی ماں ہے وہ ماں بن جاتی ہے، اور جو اس نوجوان کا باپ ہے وہ باپ بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ محرم رشتہ دار ہے، قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹا اگر طلاق بھی دے دے تو باپ اس متعلقہ سے یا بیوہ سے نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح حقیقی باپ ہوتا ہے کہ اپنی بہو سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، چاہے بیٹا طلاق دے دے، چاہے بیٹا فوت ہو جائے، یعنی بیوہ بہو سے، متعلقہ بہو سے سسر کا نکاح قیامت تک نہیں ہو سکتا، جس طرح حقیقی باپ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کے اندر محرم کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہے۔ آپ نے حج کے لیے جانا ہے، آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ ہے نا کہ مال موجود ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ عورت کے لیے مال موجود ہے اور ساتھ محرم رشتہ دار بھی موجود ہے تو پھر حج فرض ہے۔ اگر محرم رشتہ دار نہیں، اس عورت کے اوپر جتنا مرضی مال ہو، اس عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ محرم کون ہے؟ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس مرد سے کبھی نکاح نہ ہو سکے اس کو محرم رشتہ دار کہتے ہیں۔ دوسرا، بیوی کے لیے جو اس کی زندگی میں خامد ہے، شوہر ہے، حالانکہ یہ محرم نہیں، یہ اس کی گھر والی ہے، اہلیہ ہے، وائف ہے۔ اسلام نے اس کے ساتھ بھی سفر کی اجازت دی ہے کہ میاں بیوی اگر عورت کے پاس پیسہ ہے، خامد کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ لڑکی والے امیر ہیں، اس کو حصہ ملتا ہے باپ کی جائیداد سے، اب وہ صاحب حیثیت ہو چکی ہے، اور دوسری بات اس کے پاس اتنا مال ہے کہ سال بعد اس نے زکوٰۃ بھی ادا کر لی۔ ایسی عورتیں بھی موجود ہیں۔ خامد کی آمدن کم ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے، کیونکہ مال نہیں ہے اس کے پاس۔ بیوی کے پاس مال موجود ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا، اس عورت کے اوپر حج بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آج کل ہمارے ہاں خامد محبت میں اللہ نے دیا ہے تو اچھی بات ہے کہ خامد اپنی بیوی کے زیور یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی تو خامد اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ اس کی نیکی ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا اس سے اللہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ وہ زیور، وہ حق مہر، وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ اس عورت کی ملکیت میں ہے۔ اس لیے وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اگر ان کے خامد آپ کے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں یا اپنے مال سے آپ کو حج کرواتے ہیں تو یہ محسن ہے، شکر کے لائق ہے، ان کا شکریہ ادا کیا کرو کہ زکوٰۃ مجھ پہ فرض تھی، آپ نے میری طرف سے زکوٰۃ دی تو آپ کا شکریہ، یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، اگر آج کوئی امیر عورت سال گزر جائے زکوٰۃ نہیں دے گی، قیامت والے دن بے زکوٰۃوں کے ساتھ اٹھائی جائے گی، استغفر اللہ، اور قبر کے اندر وہ گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس زبان سانپ کو زبان عطا فرمائیں گے
वो पूछेगा, वो पूछेगी, मुझे क्यों डस रहा है, मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है, मुझे क्यों कर्ब में मुब्तला कर रहा है। वो सांप कहेगा आना मालुका आना कंजुका, मैं वो तेरा माल, मैं वो तेरा खजाना जिसको तू संभाल संभाल के रखता था, रखती थी, ज़कात नहीं देते थे। अल्लाह ने अजाब की शक्ल बना दी। अस्तग़फिरुल्लाह। एक और हदीस कायनात के इमाम ने फरमाया, लोगों तुम्हारा माल वो है जो तुमने खा लिया पी लिया, तुम्हारा माल वो है जो तुमने पहन लिया, तुम्हारा माल वो है जो तुमने सदका खैरात कर लिया, बाकी माल बुरसा का है। आज हमारे यहाँ बाज़ दोस्त माल है, खाना नसीब नहीं, पीना नसीब नहीं, पहनना नसीब नहीं, सदका खैरात करना नसीब नहीं, ताले लगा लगा के रखता है, बच्चों को तंगी में रखता है, बीवी को तंगी में रखता है। बहुत सी मिसालें, आप भी इसी माशरे में रहते हैं, रिश्तेदारों में भी हो सकती है, दोस्तों में भी हो सकती है। जब वो आदमी फौत हो जाता है, वो औलादें फिर पिछली सारी कसर निकाल देते हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, कोठियाँ बन रही हैं, महल्ला छोड़ दिया, पता चला माल मौजूद था, बाप ने ना खुद खाया ना खुद पिया, ना औलाद के ऊपर फरमानी की। हालांकि ये इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह नेमत दे, बीवी को पता चलना चाहिए कि मेरे खामद के पास अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। औलाद को पता चलना चाहिए हमारे बाप की आमदन अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये रिज़्क़ हुन्ना व किस्मत हुन्ना, बीवी का रिज़्क़, उसका पहनावा, औलाद का रिज़्क़, उनका पहनावा, उनके हक़ हकूक़ अल्लाह ने बाप और खामद की ज़िम्मेदारी लगाई है। तो इसलिए अगर कोई खामद जो है अपनी तनख्वाह से, अपनी आमदन से उस अमीर बीवी का ज़कात अदा करते तो शुक्रिया बनता है ना। तो इसलिए औरत के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, औरत के ऊपर हज फ़र्ज़ है अगर उसके पास माल मौजूद है। अल्लाह, तो यहाँ भी इस्लाम ने शर्त रख दी कि महरम के बगैर, आज कहते हैं जी सऊदी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी, शरीयत क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह जितनी मर्ज़ी को इजाज़त दे, जब तक अल्लाह का कुरान है क़यामत की दीवारों तक, और आमना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुस्तफ़ा है, कोई इख्तिलाफी बात नहीं। आओ अल्लाह के कुरान को मानो, अल्लाह के नबी के फरमान को मानो कि कोई औरत महरम के बगैर हज नहीं कर सकती, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं। और यहाँ देखो अभी दीन नहीं आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा अपने बच्चे को साथ लिया, कितनी उम्र है, किसी ने 5 साल लिखी है, किसी ने 6 साल लिखी है, अपनी वालिदा मोहतरमा जनाब आमना के साथ, अपने दादा अबू और जनाब आमना अपने ससुर के साथ, मक्के और मदीने का कितना सफ़र है। आज तो देखो अल्लाह की रहमत, जहाज़ का भी सफ़र आ गया, बुल ट्रेन का भी सफ़र आ गया, गाड़ियों का सफ़र आ गया, ट्रेनों का सफ़र आ गया, बसों का सफ़र आ गया। उस दौर में घोड़ों पे, ऊँटों पे, गधियों पे लोग सफ़र करने वाले। अल्लाह अकबर। तो रास्ता भी बड़ा मुश्किल, सुनसान रास्ते, बियाबान जंगल। अल्लाह अकबर। आपने वो सफ़र किया छोटी उम्र में। इसका मतलब है कि मदीना तैयबा की सरज़मीन इस लिहाज से भी बड़ी खुशबख्त है कि नबुव्वत और रसालत से पहले भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोटे छोटे कदम मदीने की सरज़मीन पे लगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको मदीना मुनव्वरा के अंदर रोज़े मुबारक के पास जाके ऐ अल्लाह हमें दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना में अल्लाह नफल पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा, मस्जिद नबवी में इमाम के पीछे बाजमात नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा, जन्नतुल बक़ी में जाके उन लोगों के लिए दुआए बख्शिश और दुआ करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमा। मदीने की सरज़मीन यसरब जिसका नाम है, और वहाँ के लोग औस भी थे, खजरज भी थे, यहूदी भी थे, उनको ये नहीं पता था ये जो छोटा सा बच्चा आया है, अल्लाह अकबर,
ایک ایسا دن بھی آئے گا ہماری نسلیں، ہمارے لوگ جو ہے اس کا استقبال کریں گے اور اس کے دیدار کے لیے ترسیں گے۔ اللہ اکبر۔ عام لڑکا سمجھا، عام بچہ سمجھا، لیکن حسین و جمیل تھے۔ جب آقا مدینے کی سرزمین میں یثرب میں آئے، آپ کا یہ ننہال تھا، نانکا جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بڑی اوبگت کی۔ جناب آمنہ وہاں رہی، وہاں جناب عبداللہ کی قبر موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ پرانے نوائے وقت کے اخبار میں بعض دوستوں نے بتایا ہے کہ مدینہ طیبہ کی جو پرانی ہسٹری ہے یا پرانا نقشہ ہے، انہوں نے وہاں جناب عبداللہ کی قبر کا نشان موجود تھا۔ اور لوگ جو ہے نسل در نسل آج بھی جنت البقیع میں آپ چلے جائیں، جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں سعودی لوگ، اگر آپ کو کوئی بزرگ مل جائے تو آپ کو نسل در نسل کہتے ہیں سینہ بسینہ، وہاں کوئی رجسٹر نہیں، کوئی فائل نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی میموری نہیں، وہ اس نے اپنے باپ سے سنا، اس نے اپنے باپ سے سنا، اس نے اپنے باپ سے سنا کہ یہ قبر فلاں کی ہے، یہ قبر فلاں کی ہے، یہ قبر فلاں کی ہے۔ کچھ لوگ وہاں بتاتے ہیں کیونکہ وہاں تختی نہیں لگی، کیونکہ اسلام کے اندر بھی، اس کا مطلب اسلام سے پہلے بھی یہ کتبے وغیرہ موجود نہیں تھے، اور اسلام نے بھی یہ کتبے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ پتھر کا نشان لگا سکتے ہیں، کسی درخت کی ٹہنی کا نشان لگا سکتے ہیں، ان دو چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ جو تحریر ہے، یہ جو کتبہ ہم لگاتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں، یہ تو پہلا موقع ہے نا، 6 سال کی یا 5 سال کی عمر میں اپنی امی جان کے ساتھ آقا جب یہاں تشریف لائے، کچھ دن قیام کیا، بعض نے مہینوں کا بھی قیام لکھا ہے، بعض نے تھوڑے دنوں کا بھی قیام لکھا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ نے زیادہ دن قیام کیا، کیونکہ جب آدمی اتنا لمبا سفر کر کے آئے، میلوں کا سفر ہے مکے سے مدینے کا، تو وہاں پھر آدمی کچھ دن ٹھہرتا، اور پھر اس لیے کہ یہاں جناب عبداللہ کی قبر ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے، جناب عبداللہ کی قبر کو دکھایا۔ اللہ اکبر۔ آپ چھوٹی عمر میں، اور بتایا ہوگا احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بابا جانی جناب عبداللہ کی قبر ہے، آپ چھوٹی عمر ہے، قربان جائیے، والدین کی قدر کیا کرو، پھر جو جب دنیا سے چلے جائیں گے، میں نے دیکھا پھر نوجوان قبروں پہ جا کے گھنٹوں بیٹھے روتے رہتے ہیں، کاش کبھی زندگی میں تو اپنی زندہ ماں کے پاس اتنا بیٹھتا، کاش کبھی زندگی میں تو اپنے اس باپ کے پاس بیٹھتا۔ آج ٹائم ہی نہیں ہے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، باپ کے پاس اپنا موبائل۔ میں تو اکثر کہتا ہوں بچوں، جب ماں باپ کے پاس بیٹھو، موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا کرو، اور یہ وہ نعمت ہے، موبائل مل جائے گا، دوبارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، دوبارہ اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑا کام دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو سامنے ماں باپ بیٹھے ہیں نا، یہ دوبارہ نہ مجلس ملنی ہے نہ دیدار نظر آنا ہے۔ ان سے پوچھو جن کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، کوٹھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماں باپ کی نعمت کا نعم البدل اللہ نے نہیں رکھا۔ اس لیے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو۔ یہ پیر چلا گیا، دنیا میں ایسا پیر کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ محض پیر ہے جن کی دعا بھی قبول ہے اور بد دعا بھی قبول ہے۔ ممکن ہے آپ کسی سے دعا کروائیں، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، فعال لما یرید، وہ رب ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس رب نے کہا میرے محبوب پیغمبر زبان نبوت سے ان کو بتا دو، والدین کی دعا بد دعا گارنٹی شدہ قبول ہے۔ اللہ، اس لیے اس سے بڑا کوئی پیر نہیں، ان کی قدر کیا کرو، ان کے پاس بیٹھ کے ان سے دعائیں لیا کرو۔ آج ہماری نمازوں کے اندر، سنتوں میں، نوافل میں، فرضوں میں، شاید گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد ایک نوجوان نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی، یعنی رب اجعلنی والی دعا، تو ہم اپنے بچوں کو بھی وہی یاد کرواتے ہیں، اور ہم سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دعا ہے نماز کے اندر پڑھنے کی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کا ذکر کیا، ربنا اغفر لی
वाली वालिदैया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे। ज़िंदा है तो फिर भी माफ़ कर दे, अल्लाह आपके पास चले गए हैं तो फिर भी माफ़ कर दे। बड़ी जामे दुआ है, इसमें कोई शक नहीं। कुरान पाक की मसनू दुआ है, कलामुल्लाह। सवाल यह है कि इसके अलावा क्या हम और कोई दुआ नहीं कर सकते? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी है? तो इसके सबूत ना मेरे पास है ना किताब लिखने वाले के पास है। सबूत क्या है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सलाम से पहले तशहुद दुरूद शरीफ के बाद मसनून दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। क्योंकि जब तक बंदा सलाम नहीं ना फेरता उसका लिंक अपने रब के साथ होता है, तो रब उस वक़्त उसकी दुआएं सुन भी रहा है, आम भी सुनता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी हालत है। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों देखो इस बंदे ने सजदा भी किया, रुकू भी किया, क़याम भी किया, मेरे महबूब पैगम्बर पे दरूद भी भेजा, सलाम भी भेजा, अब मुझसे अपने लिए दुआएं कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसकी दुआओं को कबूल फरमा दिया। तो इसलिए ये भी आप दुआ पढ़ सकते, को मना नहीं है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की अहादीस के अंदर बहुत सी दुआएं आती हैं। इन्नी ज़लम तो नफ्सी वाली दुआ आती है, और दूसरी ये जो है कब्र के अजाब से, फितना दज्जाल के अजाब से, जहन्नम के अजाब से बचने की दुआएं भी आती हैं। तो यहाँ मुद्दसीर ने ये कहा है कि आप कोई सी दुआ भी जो कुरान में आती है या हदीस में आती है वो आप दुआ इस मौके पे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि पंजाबी की दुआ बना के वही पढ़नी शुरू कर दें। यानी इस तरह आजकल अक्सर दुआएं हम याद वो कर लेते हैं जिस तरह अरब ममालिक के अंदर नमाज़ों के या ये क़याम के अंदर या हम नमाज़ों के बाद दुआ करते हैं, तो उनकी अपनी ज़बान अरबी है, तो वो अपनी बोली में भी दुआ मांगते हैं तो अरबी ज़बान में मांगते हैं। तुम्हारे बाद दोस्त वो सुन के कहते हैं आप साहब इसका हवाला चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा भाई बुज़ुर्ग, ये वो कुरान हदीस की दुआ नहीं है, ये उनकी अपनी अरबी ज़बान है। जिस तरह हम पंजाबी में दुआ करते हैं या जिस तरह हम अपनी उर्दू ज़बान में दुआ करते हैं, या कोई अंग्रेज़ मुसलमान है वो अंग्रेज़ी में दुआ करते हैं, तो वो मसनून नहीं है, वो अपने अल्फाज के साथ अल्लाह के हजूर अपनी हाजत को पेश कर रहा है, तो ये भी जायज़ है। लेकिन नमाज के अंदर मेरी और आपकी बनाई हुई अरबी की दुआ वो है नमाज में पढ़ने की इजाज़त है नहीं है। कुरान मजीद के अंदर बहुत सी दुआएं आप जितनी मर्जी पढ़ लें। अहादीस के अंदर बुलूग़ुल मराम से लेकर बुखारी शरीफ तक जितनी भी अहादीस की किताब है उसमें किताबुद दुआ है, किताबुल ज़िक्र है, उसमें इतनी दुआएं मसनून हैं आदमी जितनी चाहे पढ़ सकता है। तो इसलिए ये जो नमाज के अंदर हम दुआएं करते हैं ये दुआ करना जायज़ है। लेकिन कौन सी दुआएं जो कुरान के अंदर मौजूद हैं, जो आका की ज़बान मुस्तफ़ा से आई है। इसके अलावा कोई मौलवी साहब बना ले, कोई अरबी अपनी हाजत पेश कर रहा है, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के अंदर बहुत सी अरबी इमामों की दुआएं आ रही हैं और लोग पूछते हैं आप साहब ये दुआ कहाँ से, तो ये अरबी ज़बान में ही आ रही है, कुरान हदीस में नहीं आ रही। उस दुआ को आप नमाज में नहीं पढ़ सकते। हाँ, आम हालत में वो दुआ ज़बानी याद करके अरबी ज़बान में, चलो ये इसलिए वो कर रहे हैं कि यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी में है, चलो ये भी मैं दुआ कर लेता हूँ, लेकिन नमाज में करने की इजाज़त नहीं है। आप उस दुआओं को आम हालत में आप दुआ में कर सकते हैं, नमाज के बाद कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, कहीं भी किसी जगह भी बैठ के आप दुआ कर सकते हैं। तो इसलिए माँ बाप की कदर करो। तो जनाब आमिना अपने बेटे को अपने खामद की कब्र पे लेकर है। अब अल्लाह के फैसले हैं। यहाँ से हम वापस जा रहे हैं मदीना से, यानी यसरब से मक्का की तरफ। वापस रास्ते में एक अबवा नामी जगह आती है, वहाँ इन्होंने क़याम किया इस काफ़िले ने। तो जनाब आमना, अल्लाह अकबर, खामद की जुदाई कहते हैं मोहब्बत वाला जोड़ा हो ना, तो खामद की जुदाई में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह बीवी चली जाए खामद के लिए मुश्किल है, अगर खामद चला जाए तो बीवी के लिए मुश्किल, बीवी चली जाए तो खामद, अगर वो अच्छा जोड़ा है, मोहब्बत करने वाला है, ये नहीं एक दूसरे को तंग करने वाला हो, तो खामद कहे फौत होगी, बीवी का चलो शुक्र है जान छुटी, नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करता हो। जनाब आमना के दिल में खामद की जुदाई, अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल्ला ऐसा नेक और साले नौजवान, मक्का की सरजमीन में पानी की जगह शराब पीने वाले, ज़ना की गुनाह की आम वबा है, सूदखोरों की
والد मोहतरम के बचपन को भी पाक रखा, जवानी को भी पाक रखा। सुभान अल्लाह। ना ज़िंदगी में शराब को पिया, ना ज़ना किया, ना जुआ खेला, ना किसी पे जुल्म किया, ना ज़्यादती की। अल्लाह ने महबूब पैगंबर के वालिद का नाम भी वही रखा है जो अल्लाह को पसंद है। अभी दीन इस्लाम नहीं आया, मक्का की सरजमीन में वाहद नौजवान जिसका नाम जनाब अब्दुल्ला है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने फिर बेटा भी वो दिया जो पूरी कायनात का इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब आमना बीमार हो गई, अल्लाह के फैसले गालिब। अलम यजिद का यतीमन फावा, माँ चली जाए फिर भी यतीम है, बाप चला जाए फिर भी यतीम है। इधर बाप पहले जा चुका है, अब जनाब आमना बीमार हो गई, उसी जगह अल्लाह को प्यारी हो गई। छोटा सा मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप को देखा नहीं, माँ को देखा है, उसकी ममता को देखा है, उसकी शफकत को देखा है, उसके प्यार को देखा है। आज माँ भी जुदा हो रही है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का फैसला, उसमें क्या हिकमतें हैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटी उम्र है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, छोटा सा बच्चा माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। कभी अपने ज़हनों में वो तस्वर लाओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 5 से 6 साल हो, माँ आमना का जिस्म सामने पड़ा हो, दादा प्यार कर रहा हो, बेटा सब्र कर, बेटा सब्र कर। पहले जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने खूबसूरत हसीन और जमील बेटे को खोया, आज अपनी बहू को खो रहा है। अल्लाह के फैसले गालिब है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्के का सरदार है, बैतुल्लाह के बानियों में से है, बैतुल्लाह की तामीर करने वालों में से है, ज़मज़म का चश्मा जारी होने वालों में उनका नाम शुमार होता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कभी अपने पोते की तरफ देखता है, कभी अपनी बहू की तरफ देखता है, लेकिन अल्लाह के फैसले गालिब। अपने इस यतीम पोते को लेकर मक्का की सरजमीन में आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, आप अक्सर अपने वालिद का नाम लिया करते थे, अपनी माँ की ममता को याद किया करते थे। सहाबा फरमाते हैं, जब अपनी माँ का जिक्र आता, बाप का जिक्र आता, इमाम कायनात की आंखों में पानी आ जाता है। एक सफ़र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे हैं, ये वो पुराना रास्ता है, मक्का मदीने का पुराना रोड है। अल्लाह अकबर। रात को सहाबा कहते हैं, हमने एक जगह क़याम किया, आपका खैमा लगाया, रात का आखिरी पहर, हमने देखा इमाम कायनात अपने खैमे में मौजूद नहीं, दुश्मनी का दौर है, मक्के वालों के हमले का डर है। हमने तलाश करना शुरू कर दिया, हमें कहीं दूर से सिसकिरियों की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कुछ ज़ारो कतार रो रहा है। कहते हम उस आवाज़ के पीछे पीछे, सहाबा फरमाते हम जाए, जहाँ देखा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र का निशान है, वहाँ बैठ के आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। और फितरती बात है, कुदरती बात है, जिससे हमें दिली लगाव हो, जिससे दिली मोहब्बत हो। जब वो मुस्कुराता है हमें भी मुस्कुराहट आ जाती है, जब वो रोता है हमें भी रोना आ जाता है। आप अपनी मिसाल देख लें, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। माँ रो रही है तो बच्चे की आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे, बाप रो रहा है, औलाद की आंखों में आंसू क्यों आएगा? क्योंकि अल्लाह ने एक हिस्सा बना दिया है, एक जिस्म बना दिया है। माँ खुश है, औलाद खुश है, बाप खुश है, औलाद खुश है। माँ परेशान है, रो रही है, औलाद की आंखों में पानी आएगा। आप देखें, ये कुदरती अमर है, फितरती अमर है। सहाबा की दिली मोहब्बत अल्लाह के बाद अगर है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता नहीं कि आप रो क्यों रहे हैं। करीब आए, सहाबा कहते हमने भी रोना शुरू कर दिया। रोते हुए इमाम कायनात ने फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, ये उस अजीम खातून, अजीम औरत की कब्र है जिसने मुझे जन्म दिया, ये मेरी माँ आमना की कब्र है। आपने अपनी वालदा की कब्र की
जो है वो निशानी, वो ज़िक्र सहाबा को बताया। अल्लाह अकबर। इससे पता चला जिनके माँ बाप जा चुके हैं, माँ बाप की कब्र पे जाया करो, उनके लिए दुआ किया करो, उनके एहसानात को याद किया करो, उनकी नेकियां को याद किया करो, उनका जो हमारे साथ जो तकलीफ़ें गुजारी है उनको याद किया करो, उनकी कदमों में जाके खड़े हो जाया करो और बैठ के उनके लिए दुआएं किया करो। अल्लाह ये मेरी माँ है, अल्लाह मेरा बाप है, इसने मुझे तरबियत दी, इसने मुझे जन्म दिया, इसने मुझे पाला पोसा, आप भूखे रह के मुझे खाना खिलाया। अल्लाह इनकी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह यहाँ भी सुनते हैं, लेकिन कब्र पे जाके जो दुआ करेंगे ना उसकी कैफियत ही कुछ और है। और फिर रोना भी आएगा, आंसू भी आएंगे। और रब का वादा है जब आप दुआ में रोते हो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा दी है। रोना मना नहीं है, रोना मना नहीं है, रोना मना नहीं है। जब दिल गमगीन होता है तो आंखों में पानी आता है। हमारे बाद दोस्त कहते हैं जी रोना नहीं चाहिए। नहीं, रोना फितरत में शामिल है। ज़्यादा खुशी मिल जाए फिर भी रोना आता है, ज़्यादा गम मिल जाए फिर भी रोना आता है। अल्लाह अकबर। अगर आपको अचानक, मैं तो यही मिसाल देता हूँ, आपको कहे भाई आपने इस साल हज पे जाना है, आप खुशी से रोना शुरू कर, अच्छा अल्लाह ने मुझे हज पे बुलाया, इतनी खुशी होगी वो रोना शुरू कर देगा। दुनिया में और भी बड़ी नेमतें हैं, मैं समझता हूँ मक्के मदीने से बड़ी नेमत ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बाकी सब नेमतें नीचे हैं। अब ये रोना जायज़ है। आका अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जन्नतुल बकी से गुजर रहे थे, एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी और साथ बयान कर रही थी। इमाम कायनात करीब से गुजरे, फरमाया सब्र कर, अल्लाह तुझे सब्र का बदला बेहतर दे। कहते उस खतून ने अपने बेसब्री में, वैन में इमाम कायनात की आवाज़ को नहीं पहचाना। उसने कहा, जुमला बड़ा बेअदबी का बोला, अस्तग़फिरुल्लाह। सुन के आप चले गए। पीछे एक सहाबी आ रहे थे, उसने भी सुन लिया। उस खतून के पास खड़े हो गए, बहन तुझे पता है जिसको बेअदबी से तुमने जवाब दिया है वो कौन है? वो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं वो औरत अपने गम कबूल गई, अपनी तकलीफ़ कबूल गई। आपके पीछे पीछे आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए। वो खतून कहने लगी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको नहीं बचाना, मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई लफ्ज़ गलत निकल गया। इमाम कायनात ने वो तरीक़ी जुमला बोला है जो आज भी है और क़यामत तक के लिए है। फरमाया सुन लो, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र उस वक़्त है जब सदमा आए, और जब सब कुछ कर ले तो फिर तो सबको सब्र आ जाता है। उस वक़्त इम्तिहान है, इसलिए रोना जायज़ है, दुआ करनी जायज़ है, दुआ करवानी जायज़ है, सिर्फ बेसब्री ना करें। आका ने वो जो तरीका बताया, आपका नौमलूद बेटा जनाब इब्राहीम आपके हाथों में, आपकी गोद में, इमाम कायनात का लख्ते जिगर, जिगर का टुकड़ा बेटा, अल्लाह अकबर, दुनिया से जा रहा है, मलकुल मौत जान कब्ज़ कर रहा है, आपकी आंखों में आंसू आ गए। पास एक सहाबी बैठे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रोने से मना फरमाया? फरमाया नहीं, मैंने रोने से मना नहीं किया। अल्लाह अकबर। इसलिए रोना हमारी फितरत में शामिल है, रोना आता है, बल्कि रोया करो, दिल में नरमी पैदा होती है। और जिसको रोना नहीं आता उसका दिल बहुत सख्त है। कोशिश किया करो, तन्हाई में बैठा करो, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के रोया करो, रो रो के दुआ किया अपने लिए, वालिदैन के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तीसरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा जान, दादा अबू मक्के का सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साथ दोबारा मक्का की सरजमीन में, उस वक़्त भी मक्का था, आज भी मक्का है और इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए मक्का रहेगा। तो इसलिए अल्लाह की हुज़ूर दुआ है, रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन, जो सुना जो सुनाया अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे नौजवानों को अपने वालिदैन की खिदमत करने की, हया करने की अल्लाह इनको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन को भी जिनके दिल बहुत सख्त है, मैं उन वालिदैन से भी गुजारिश करता हूँ अपने दिलों में
औलाद के लिए नरमी पैदा करो। औलाद का माँ बाप का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। आप बाप हैं, अपने अंदर हौसला पैदा करो, अपने अंदर तहम्मुल पैदा करो, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। वो बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, हमने उसकी तरबियत करनी है। कोई गलती हो जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए, सब्र के साथ, प्यार के साथ, शफकत के साथ आप भी पेश आओ, इंशाअल्लाह वो बच्चे की इस्लाह हो जाएगी। अगर आप इस तरह पेश नहीं आएंगे तो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, फिर वो बच्चे क्या करते हैं, वो ख़ुदकुशी पे चले जाते हैं, हराम मौत मर जाते हैं। खुदारा अगर हम औलाद को कहते हैं कि माँ बाप से प्यार करो, तो हम वालिदैन से भी कहते हैं। दीन ने दोनों के हक़ रखे हैं कि आप भी अपने बच्चों से दरगुजर किया करो, उनसे प्यार किया करो, बच्चा उसको अपने सीने से लगाया करो। फितरती बात है कि बेटा अगर बाप के सीने से लगता है ना, तो अल्लाह की कई रहमतें नाज़िल होती है, मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, शफ़क़त में इजाफ़ा होता है, बच्चे को सुकून मिलता है। इसलिए मैं अक्सर अपने बच्चों को, शागिर्दों को कहता हूँ, सुबह जब घर से आओ माँ से मुसाफ़ा करके आया करो, बाप से हाथ मिला के गुड मॉर्निंग, टाटा बाय बाय, ये हमारी शरीयत नहीं है। शरीयत क्या है? अम्मी है उससे सलाम करो। अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप का माथा चूमना भी ये भी हमारे दीन में मौजूद है। तो इसलिए जल्दी में है तो कम अज़ कम अपने माँ बाप से हाथ मिला लिया करो। पता नहीं कौन सा वो माँ बाप का लमस समझती है, छूना, वो आखिरी हो सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों की, बच्चियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा, उनकी जानों की हिफाजत फरमा। क्योंकि बच्चों को घर में तो रख नहीं सकते, उन्होंने स्कूल भी जाना है, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, दुकानों पे जाना है, फैक्ट्रियों पे जाना है। तो अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत फरमा, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुझे और आपको इसमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।